Hello. Hi Bhavya. Hi, Shivam. How are you? Hi. I'm fine. What about you? I'm good. So, I think we have just 2 minutes left. Okay. We'll start in next 2 minutes. Let others Okay. join till then. Yeah. Okay. Okay. This is our Sahayak office. It's looking really nice. There is a Okay. banner behind you. Yeah. And this is our logo. मालिक सताए तो हमें बताए. It's not visible clearly. I think right now. A little bit upper. This is our logo. मालिक Yeah, सताए तो now हमें. it's clear now. Okay. So I think let's start. Okay, sure. Yeah. So, So, good afternoon, people. I hope you all are doing well. So, I welcome you all on behalf of Sahayak, a council to help, to this live session on Instagram. Sahayak is being the caretaker of all the Asahayaks. Sahayak, a council to help, is a non-profit legal aid organization which helps the needy and the laborers by providing them the legal assistance and the education and the support. So I think without wasting time, let's get started. So we have here with us Mr. Shivam Gupta, who will be answering all the questions. So if you guys have any questions, you can just write your questions in the comment sections below. But before that, I have some questions, so let's get started with that. So, Shivam, what is the main aim of this NGO? First, I will introduce you by our name, Sahayak, a council to help. Sahayak, a council to help social and legal aid foundation. It is only not a social platform. It is not only a help for a social, but we help others by legal way also. Our main aim of NGO is to help of poor and labor, organize and managing religions function, free legal assistance, educational help, and the main aim of Sahayak, the main aim of our NGO is to make labor healthy and happy by providing them a free legal assistance. That's really nice of you. Okay, Thank you. so who started this NGO? I mean, what is the history of this NGO? Actually, this NGO started on 23rd May 2017, Okay, and this NGO is started by the three students, okay, me and my two friends. okay, We three are the founder member of this NGO, and the name of those members are Miss Mansha Batra, Miss Himanshi Ahuja, and me, Shivam Gupta. And we have 4 to 5 settlers who help us in settling this NGO with name Miss Rashmi Chauhan, Mr. Sahaj, Mr. Avil Gupta, Mr. Ravi Mahajan, and Mr. Kapil. वी आर द स्टूडेंट, हम लॉ के स्टूडेंट हैं हम सारे. हम सब ने बेसिकली हम तीनों ने जो फाउंडर मेंबर हैं मनशा बत्रा, हिमांशी आहूजा एंड मी, हम तीनों को एक बार आइडिया आया नियर अबाउट 2 ईयर और 2.5 ईयर एगो कि हम एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं जो कि लोगों को लीगली हेल्प करे. I will tell you about whole process, whole history in upcoming videos, step by step. okay, हाँ, yeah. सब राज So एक बार में नहीं खोलने चाहिए. exactly, that's really Yes, true of you. yeah. Okay, so मैं ये जानना चाहती हूँ अब कि हम्म. what do you think? हम आप ये एनजीओ चला रहे हो. What हाँ जी. what's so unique about your NGO? Like there are so many NGOs around the world, around the globe. लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं. Why yours? So any unique feature you have got? मतलब ऐसा क्या है लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे और लोग आपको ज्वाइन करें? Generally, NGO started for a social welfare in India. There are numbers of NGO who have different aim.
इन इंडिया। जैसे अभी आपने बोला कि हम यहाँ पे बहुत सारे एनजीओ हैं, तो हमारी एनजीओ की ऐसी क्या बात है कि लोग हमारी एनजीओ ज्वाइन करें या हमारी हेल्प करें या हमारे साथ मिलजुल के काम करें। बट आई विल टेल यू, बट इन लीगल फील्ड व्हाट वी नोटिस बेसिकली, every individual is equal in eye of law, but someone it's how lack। कानून बोलता तो है कि सब समान है, कानून बोलता है कि सब समान है। हम सब भी जानते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी उसका हो, लेबर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, कानून सबके लिए बराबर है। बट आज की हिस्ट्री में, आज की डेज में, आज के टाइम पे आप जानते हो कि कानून भी धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। कोई भी पुअर, कोई भी लेबर, कोई भी नीडी पर्सन जो कि बीपीएल हो या बहुत ही जिसकी जो डेली वेजिस पे काम करता हो, वो आजकल किसी भी वकील को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हमारा मेन एम और हमारा एनजीओ स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही था कि हम लोगों की लीगली हेल्प करें। लेबर्स, पुअर वर्कर, डिलीवरी पर्सन और सम सर्विस प्रोवाइडर are disabled for any legal assistance or legal aid. So with the help of this NGO, we only not initiate social welfare, but we also provide legal assistance or legal help to those classes, to those person. That's why me and my friends started this NGO. So आपका ये कहना है कि आपका एनजीओ लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो many of the NGOs do not provide. So it is unique basically that it provides the legal assistance, right? Yes. Yes. Okay. So my next question is, आपके बहुत से ऐसे काम होंगे जो आपने पास्ट ईयर्स में करे हैं। एज आपने अपना एनजीओ स्टार्ट किया था मई 2017 में। Yeah. आई थिंक इट्स बीन सो लॉन्ग यू हैव स्टार्टेड योर एनजीओ, तो अभी तक आपने ऐसे बहुत सारे काम करे होंगे जो कि लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए होंगे, तो क्या आप उसमें से कुछ काम डिस्क्राइब कर सकते हैं? प्रीवियस इवेंट पे अगर हम आए तो हमने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं। हमारी पूरी टीम ने मिलके ऐसे ऐसे इवेंट्स को सक्सेसफुली भी बनाया है जो विद इन अ डे हमने ऑर्गेनाइज करे, लाइक लेबर अवेयरनेस कैंप, लीगल एड कैंप। और बेसिकली हमारी एनजीओ एक छठ, आजकल लेबर्स की एक सबसे फेमस और सबसे मेन पूजा होती है छठ पूजा, जो बिहार और यूपी साइड की लेबर क्लास लोग हैं वो उनको बहुत शिद्दत से मानते हैं। तो हमारी जो हमारी एनजीओ है सहायक जो है, वो उन लेबर्स की उस पूजा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, दैट इज छठ पूजा। और हम लीगल एड कैंप तो करते ही हैं, हम लोगों को, लेबर्स को इंडस्ट्री एरिया में जा जाके, लोगों के पास जा जाके, लोगों को अपनी जगह बुला के हम लोगों को इसके लिए जागरूक करते हैं कि वो अपने राइट्स जाने, ठेकेदार और मालिक से जो उनके साथ शोषण हो रहा है वो उससे बचे, वो अपनी जितनी भी हो सके अपनी सहायता खुद करें। सहायक तो उनके साथ है, लेकिन सबसे पहले उनको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा जब भी कोई उनकी दूसरी हेल्प करने जाएगा। अगर किसी मालिक ने, किसी ठेकेदार ने उनके साथ शोषण करा या उनके साथ कुछ भी गलत बिहेव करा, जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा। तो हमारा मेन बेसिकली हमने प्रीवियस इवेंट लेबर अवेयरनेस कैंप, लीगल एड कैंप, छठ पूजा फॉर लेबर्स, नुक्कड़ नाटक, सोशल और लीगल कैंप हम लगाते हैं, ये सब हम ऑर्गेनाइज करते हुए आए हैं। ये हमारे ऐसे ऐसे इवेंट हैं। ऐसे कोई केसेस हो जो आपने लड़े हो, जैसे आपने बोला आप लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लेबरर्स को, हाँ so जी, हाँ any जी। cases, any specific cases you have fought for them, like anything you can We share? have fought many of cases for laborers, but some of main cases I will tell you। हमने एक केस लड़ा था जितेश वर्सेस बालकराम रोहिणी कोर्ट में। दिस इज द फाइल ऑफ दैट केस, आई विल शो यू। ओके या हाँ, इस केस में क्या हुआ था, 5 साल पहले एक लेबर एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसका फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो वहां पे बड़े बड़े मोटर्स भी होते हैं, मशीनरी भी होती हैं। उस मशीनरी में उसका राइट हैंड आ गया था और वो राइट हैंड उसका 23% डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप हो गया था। जब वो हैंडीकैप हो गया तो मालिक को वो यूजलेस लगा, फैक्ट्री के लिए वो कुछ काम का नहीं रहा। तो मालिक ने उसको उसका इलाज करवा के, मतलब आजकल ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रही हैं वर्कर्स का, तो मालिक ने क्या करा, उन सबको
उनका इलाज करवा के वहां पे ईएसआई में उनको काम से निकाल दिया। उनको कोई रेमुनरेशन नहीं दिया, उनको कोई फंड नहीं मिला, उनको कोई पीएफ नहीं मिला। प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी वो, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, तो कोई उनको कुछ नहीं मिला। अब वो सिर्फ एक इलाज की वजह से और एक टूटे हुए हाथ की वजह से अपनी फैमिली तो नहीं चला सकते थे। तो उन्होंने हमारी हेल्प, हम उनने उनकी हेल्प करी, वो हमारे पास आए। 5 साल बाद हमने मालिक को नोटिस भेजा। मालिक ने नोटिस पे बोला कि 5 साल पहले हमारा और इनका समझौता हो गया है, हमने इनका इलाज करवा दिया, दैट्स इनफ। बट जो उसका हार्ट टूटा है, तो उससे तो उसकी जिंदगी, उसके घर का खर्चा नहीं चल सकता। उस लेबर की आई थिंक मेरे ख्याल से 51 या 52 के अप्रोक्स एज थी। उनका एक बच्चा था, उनकी एक डॉटर थी, उनकी शादी होनी थी। तो हमने रोहिणी कोर्ट में केस डाला उस लेबर के उस लेबर के फेवर से केस डाला। हमने मालिक को नोटिस दिया, डीडीए को नोटिस दिया, हमने सबको बुलाया। तो कोर्ट केस में हमारे पास ये हुआ कि 2.5 लाख मालिक को जुर्माना देना पड़ा लेबर को, और प्लस में हमने उसको उसी फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी दिलवाई, जो आज उसको मालिक 13,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहा है। उसको नौकरी तो मिली, साथ में कंपनसेशन भी मिला। ये हमारा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फर्स्ट थिंग, और हमारे को ये नहीं कि हमने सिर्फ उसकी हेल्प करी, उस बंदे ने हमें 10,000 रुपए डोनेशन भी दी, जो सहायक फंड के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। किसी भी That's गरीब really आदमी nice की of दुआ दुआ। him. हाँ That's जी। really nice of him. Okay, so हाँ, any other case you have caught you want to share about that? मैं केस को आपको उसमें किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आई विल No टेल यू problem. अबाउट अ केस। देर इज अ 7 ईयर, आई थिंक 6 ईयर ओल्ड गर्ल, छह Okay. साल की एक बच्ची थी, उसका रेप क्यों हुआ था। Okay. हाँ, तो सहायक ने उस रेपिस्ट के अगेंस्ट में केस लड़ा। हमने उस टाइम, हमारी टीम ने, सहायकियंस ने मिलके सबने भूख हड़ताल करा। एक होलंबी कला गांव जहां ये हमारा सहायक ऑफिस है, ये कांड वहीं पे हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे जैसे भी कोई लेबर क्लास रेंट पे आता है, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी इंस्पेक्शन, उसको रेंट पे कमरा मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे इस चीज की मांग करी, हमने यहाँ पे इस चीज के लिए आवाज उठाई कि अगर आप किसी को कमरा देते हो, किसी के लिए आप कमरे रेंट पे कमरा देते हो, किसी भी लेबर के लिए या किसी को भी देते हो, नॉट ओनली लेबर, एनी सिटीजन, तो प्लीज उसकी पहले वेरिफिकेशन करवाएं, उसकी अच्छे से हिस्ट्री देखे, क्या है क्या नहीं, पास्ट हिस्ट्री क्या है उसकी, उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। जब सब कुछ सही लगे, जब आप उसको कमरा दें। इसीलिए हमने यहाँ पे भूख हड़ताल करी थी। इस भूख हड़ताल में बहुत से साइकियन ने मेरी हेल्प करी। सब ने मिलके हमने 3 दिन से भूख हड़ताल करी। तो हमारे यहाँ के जो नॉर्थ वेस्ट जोन के एसएचओ, उस टाइम मिस्टर खान एसएचओ हुआ करते थे, उन्होंने आके हमारी भूख हड़ताल तुड़वाई। और उन्होंने जब हमें एश्योरेंस दिया कि आज के बाद होलंबी कला गांव में या होलंबी के आसपास, उनके बेसिकली उनके एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया में किसी को भी कमरा मिलेगा या किसी भी मकान मालिक किसी को भी कमरा देगा, तो सबसे पहले वो अपनी वेरिफिकेशन करवाएगा या मकान मालिक उस रेंट वाले की वेरिफिकेशन करेगा, जब जाके उसको कमरा दिया जाएगा। क्योंकि बेसिकली हमारा ये जो हमने अनशन करा, या जो हमने भूख हड़ताल करी, वो इसीलिए करी कि जो उस छोटी सी बच्ची का रेप हुआ, वो भी एक टीनेंट नहीं करा था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। आज वो बच्चा अंदर है जिसने रेप करा था, 18 साल का वो रेपिस्ट था, उसने एक 6 साल की बच्ची का रेप करा था। वो बच्ची आज बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, उस स्कूल का नाम है एमपीएस। सहायक ने उस स्कूल वाले से उस बच्ची को स्कॉलरशिप दिलवाई। ईडब्ल्यूएस होती है, इकोनॉमिक वीकर सिस्टम। तो उस लड़की को ईडब्ल्यूएस के अंदर उस स्कूल में पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ये छोटे छोटे एफर्ट्स करके हम आज सहायक का अच्छे अच्छे, आई थिंक कि आने वाले टाइम में सहायक एक अच्छी लोगों की हेल्प करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, जो सिर्फ बिल्कुल लेबर्स और नीडी बनेगी. पर्सन की। आई होप आप लोगों की दुआ रही तो जरूर बनेगी। बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी. ये जरूरत है टाइम की, बिकॉज आजकल इतने सारे केसेस आ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है आसपास. सो देयर इज अ नीड एंड देयर शुड बी समवन हु शुड स्टेप फॉरवर्ड to make India a better country or help those people who are in need. So my next question is, आपने बोला कि आप बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, आप हाँ जी। सोशल वेलफेयर के इवेंट्स करते हैं और आप केसेस भी फॉर्ट करते हैं.
सो आपको उसके लिए फंड्स रेज करने की रिक्वायरमेंट भी होती होगी, आपको सामान भी चाहिए होता होगा, तो वो कहाँ से आता है, आप कहाँ से लाते हैं, मतलब हाउ डू यू रेज फंड्स? अभी हमने जितने भी इवेंट करे हैं, भगवान की दया से हमें फंड्स की कोई भी कमी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी सहायकियंस इतनी कैपेबल है। हमारे सहायकियंस के जो मेंबर है वो इतने कैपेबल हैं। वो अपने आस पड़ोस से, अपने आप से, अपने रिलेटिव से हम सब डोनेशन इकट्ठा करते हैं। पुरानी नई जिसको जो भी डोनेट करना है उनसे वो सामान इकट्ठा करते हैं। हम सब वही सब सामान इकट्ठा करके उसी को यूटिलाइज करते हैं। और रही बात केसेस वगैरह की, मैं, मिस्टर अविल, मनशा बत्रा, हिमांशी आहूजा, मिस रश्मि, मिस सहजप्रीत, मिस्टर सहजप्रीत, मिस काजल, मिस पूजा, मिस रितांशी, हमारे पास बहुत ऐसे सहायकियंस हैं जो कि एक एडवोकेट हैं, जो एक लॉ लेक्चरर हैं, जो भी मेडिकल फील्ड से भी ताल्लुकात रखते हैं। तो भगवान ने हमें इस लायक बनाया, हमें इस ऐसी टीम दी जो कि अलग अलग फील्ड से मिलते हुए बच्चे आए हमारे पास, अलग अलग फील्ड से हमारे पास मेंबर आए। तो हम सब आपस में ही काम बांट के आपस में ही स्टार्ट करते हैं, ताकि लोगों को हमें पे ना करना पड़े, हम वो काम खुद ही कर सकें, किसी को हमें पे नहीं करना पड़े। ताकि अगर हम जितना फंड बचा पाएंगे, जितना हम लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी। अगर हम फंड बचाएंगे तो हमारा फंड आगे और अच्छे कामों के लिए यूज हो पाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डोनेशन ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स ऐसे हो जो एक्टिव रहे, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट के हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो किसी भी सोशल एक्टिविटी से ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। ओके, सो जैसे कि आपने बोला कि आप फंड रेज अपने सहायकिन्स हैं जो आपके वही करते हैं, बट उसके लिए भी आपका कोई बैंक अकाउंट कुछ समथिंग होगा जिसमें आप सारा अकाउंट्स का प्रोसेस करते हैं? Yeah, I will show you my bank, Sahayakan bank account. This is the passbook of Sahayak. ओके। I will show you it. Uh, Here, it is visible. यस इट इज। Sahayaka Council to Help. या इट इज विजिबल। ओके। जो भी हम डोनेशन लेते हैं, जो भी हम फंड इकट्ठा करते हैं, हम सबकी एंट्री करते हैं। हमने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है जो कि सिर्फ ये बैंक अकाउंट को ऑपरेट करता है। हम इसकी प्रॉपर आईटीआर भी फाइल करते हैं। ये हमारा पैन कार्ड है सहायक का। ओके। हाँ, तो ये नहीं है कि हम जो भी काम करते हैं हम गवर्नमेंट को उस चीज का रिकॉर्ड नहीं देते, या जो हमारे पास फंड है हम गवर्नमेंट को उस चीज के बारे में नहीं बताते। हम प्रॉपर आईटीआर भी फाइल करते हैं। हम प्रॉपर लोगों को सहायक के बारे में, ओ सहायक का जो फंड है, अगर कोई भी हमारा मेंबर हमसे पूछता है, और जो भी हमारा मेंबर अगर उस सहायक के फंड को यूज करना चाहता है, या कोई भी मेंबर चाहता है कि ये फंड कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, हम सब सारी चीज हम उसको क्लियर रखते हैं। हमारा जो सहायक का अकाउंट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है हमारे सहायकियंस के लिए। Okay. So I have a question in my mind since long. Like Instagram पे, Facebook पे आप लोग बहुत कुछ करते हैं, इवेंट शेयर करते हैं, बट बहुत सारे लेबरर्स तो ये सब चीजें यूज करते ही नहीं है। तो हाउ दे गेट टू नो अबाउट यू? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक लोग यूज कर रहे हैं। लेबर्स क्लास एक ऐसी क्लास है जिन्हें ये सब चलाने का टाइम ही नहीं मिलता। सीरियसली बताऊं तो हम उनके लिए क्या करते हैं, हम उनके लिए नुक्कड़ नाटक, लीगल एड कैंप, हम जो इंडस्ट्री एरिया है हमारे आसपास, या जहां हम जाने की पहुंचने की कोशिश करते हैं, या जहां हम इजीली पहुंच सकते हैं, हम वहां पे जाके लीगल एड कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज कराते हैं, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जितनी भी लेबर्स हैं, जितने भी वहां पे मजदूर हैं, सबको पता चले कि हाँ उनका हक क्या है। उनके इनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, उनके साथ एक संस्था खड़ी है जो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है। मजदूर है, मजबूर नहीं। इस सहायक इस मुहिम को अब भी चला रहा है, आगे भी चलाएगा, और भगवान की दया रही तो ये मुहिम बहुत आगे तक जाएगी। हम सहायकियंस आए इसीलिए कि हम लेबर्स और वर्कर की हेल्प कर सके। मालिक, कोई भी मालिक हो, वो किसी भी लेबर को ना सताए। मालिक सताए तो हमें बताए। जी। मेरा एक और सवाल है कि आपने केसेस लड़े, ठीक है, बट उनके सोशल वेलफेयर के लिए आपने ऐसा कुछ स्पेशल स्टेप उठाया हो, कुछ किया हो पास्ट में जो आप शेयर करना चाहें लेबरर्स के लिए?
सोशल वेलफेयर के लिए बेसिकली सभी एनजीओ का यही मोटिव रहता है कि हम सोशल वेलफेयर करें, बट हमारा मेन मोटिव लीगल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर के लिए भी हमने बहुत काम करा है, ऐसा नहीं कि हमने कोई काम नहीं करा, बट हम अपना मेन मोटिव लीगल पे रखते हैं। सोशल वेलफेयर में लाइक भंडारा ऑर्गेनाइज करवाना, छठ पूजा ऑर्गेनाइज करवाना, लेबर्स की सबसे जो बड़ी और सबसे जो उनकी क्या कहते हैं, जिनको वो सबसे ज्यादा मानते हैं वो होती है छठ माता। उनकी छठ पूजा लेबर्स क्लास लोग बहुत करते हैं। तो हम होलंबी कला में जहां हमारा सहायक का हेड ऑफिस है, वहां पे हम एक बहुत अच्छे लेवल पे छठ पूजा ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और उस छठ पूजा को कम से कम 3 to 4 thousand लेबर्स अटेंड करते हैं। 2 दिन का वो पूरा कार्यक्रम होता है। ये सोशल वेलफेयर सिर्फ हमने लेबर्स को ध्यान में रख के इस वेलफेयर के लिए हम आज तक मुहिम उठाते आए हैं, और यही चाहते हैं कि ये मुहिम आगे भी चलती रहे। ओके, आई वांट टू नो लाइक, ठीक है आपने छठ पूजा अरेंज कराई, वो सब किया, बट बहुत सारे लेबरर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उनको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती हैं और वो कई बार अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो आपने उसके लिए कुछ स्पेशल वर्क किया हो? मेडिकल के लिए हमने काम तो करा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी एनजीओ अभी इस लेवल पे नहीं पहुंची है कि हम किसी के लिए या हम किसी के लेबर्स के लिए या किसी भी नीडी पर्सन के लिए हम उनका फ्री ऑपरेशन करा पाए। या वो अगर हमसे जो बन पड़ता है हम लिंक निकाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब में हम उनकी हेल्प कर लेते हैं। बट आपने जैसे बोला कि मेडिसिन लेना, ये सब लेना, सहायक ने होलंबी कला विलेज के अंदर जहां सहायक का हेड ऑफिस है, वहां पे 3 मेडिकल स्टोर से टाई अप कर रखा है। 3 मेडिकल स्टोर से ये रिक्वेस्ट कर रखी है कि जो भी सहायकियन आए या जो भी लेबर आए जो सहायक का मेंबर हो, उनको हमने एक लेबर कार्ड बना के दे रखा है। वो लोग उस लेबर कार्ड को उस मेडिकल स्टोर पे दिखाते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाला उनको अपनी तरफ से, सहायक का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस सहायक ने रिक्वेस्ट कर रखी है, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी सहायक का मेंबर है, जो भी सहायक का लेबर है, जो भी लेबर सहायक से जुड़ा हुआ है, उनको 40 to 50% डिस्काउंट मिलता है। वो अपनी तरफ से वो डिस्काउंट दे रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले, सिर्फ सहायकियन की रिक्वेस्ट पे। Oh, that's really nice.